ईंट गारे से सने हाथ, पसीनों की बूंदों से चमकता माथा, छैनी हथौड़ी और दो हाथ, रोज नए निर्माण बेचता हूँ। दो वक्त की रोटी मुश्किल से जुटा पाता हूँ। इस पेट की आग बुझाने को अपना पसीना बहाता हूँ। मैं मजदूर हूँ, मैं श्रम बेचता हूँ। आजादी के 64 साल बाद भी गरीबी और लाचारी लाखों लोगों की जिंदगियों से दूर नहीं हो पाई है, लेकिन इन टूटते फूटते सूने रास्तों ने लोगों की उम्मीदों को बिखरने नहीं दिया है। बंजर गांवों में गुम होता बचपन सुनहरे भविष्य की तलाश में भटक रही है। हालांकि रोटी कपड़ा मकान आज भी समाज में प्रश्न चिन्ह बनकर खड़े हैं, फिर भी लाखों करोड़ दिलों में उम्मीद की किरण आज भी बरकरार है। इन्हीं उम्मीदों के सफर की हकीकत को सामने लाने की हमारी कोशिश। Large number of labor migrates to Delhi every day. Delhi is just not a capital for them, but a city of employment. These laborers comes having lots of hopes, dreams and expectation in their eyes. Thus, the population of Delhi consists a major chunk of these migrant laborers coming from different states. There are major causes and trends observed in the course of migration. The story of Sukhdev Paswan is one among them. इलेक्ट्रिक का काम इलेक्ट्रिक वाला। आज आपके साथ और कितने लोग आए हैं? हम लोग हाँ जी। हम लोग आए 10 आदमी इधर, 12 आदमी उधर। The world is becoming highly polarized on the basis of haves and have-nots. Past 25 years, we've seen the impacts of neoliberal globalization. You've seen it in Africa, you've seen it in Asia, and for me it's very much prevalent in India, in my own country, South Africa, where there's a retreat of state, privatization, and the gap between rich and poor widens. That puts pressure on the poor, the unemployed, disadvantaged, and it means people have to look at options to survive, and quite often it's migration. And I think you've got a couple of forms of migration: internal migration, where people move from rural to urban areas, and where there is an exchange of poverty in rural areas for poverty in cities. But the research does indicate that even the poorest of the poor from rural areas are better off in cities. And then you have this international trend where people are moving in search of greener pastures and expectations of better quality jobs, or what the ILO calls decent employment. And quite often one finds that the unskilled are actually trapped in under conditions of what I would call slavery, in people to suffering. And I think there has to be an investigation into the labor brokers and labor agents, because these are the very people who are actually trapping their own communities in this rather unpleasant situation. These migrant workers used to gather at a place which forms a labor chowk. Labor chowk is the major source of employment for these migrant laborers. Among them, few are at Sarai Kalika, Naib Sarai and Defense Colony. पढ़ाई का क्या सोचा है आपने, कैसे पढ़ेंगे? बच्चों की पढ़ाई का तो ऐसा है, जहाँ पे साइड में काम करेंगे अगर वहाँ स्कूल होगा। होता है स्कूल साइड पे? साइड पे नहीं, अगर आसपास में होगा तो पढ़ाई लिखाई के लिए पूछ सकते हैं। तो वो तो आप कुछ टाइम के लिए काम करते हो ना एक साइड पे, 10 दिन कर लिया, 20 दिन कर लिया।
पे सही जुगाड़ हो गया कि 2-4 साल 6 महीने का काम है, तो वहाँ पे अगर स्कूल वगैरह होता है तो उसके लिए स्कूल में एडमिशन करा देते बच्चों को, तो पढ़ते लिखते रहते हैं। सरकारी स्कूल हुई कोई, प्राइवेट में तो ऐसा होता है पैसे लगता है। कोई अगर हम लोगों ने 1 महीना यहाँ काम किया, फिर एडमिशन जमा किया, फिर दूसरी जगह गए, फिर एडमिशन कराया, तो अगर सरकारी स्कूल है तो पढ़ाई लिखाई में बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं। तो आप दिल्ली क्यों आए? दिल्ली ही क्यों आए? दिल्ली इसलिए है यहाँ से काम मिल जाता है, यहाँ आसानी से मिल जाता है। और जगह आपने देखी है या आपको सुना है आपने कि दिल्ली में मिलता है? नहीं, यहाँ से दिल्ली से जब हम लोग घर से आते हैं ना, तो यहाँ तक बस आती, ट्रेन आती निजामुद्दीन। अच्छा, तो यहाँ से आदमी विद्युत हो जाता है। खास जगह यही है आने की, खास जगह यही है। सराय काले का आपको लगता है कि यहाँ आ जाओ? ये अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, निजामुद्दीन काले का निजामुद्दीन है। यहाँ पे जो ट्रेनें आती हैं यूपी मध्य प्रदेश बिहार से यहाँ तक आती हैं। बस जो है अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा है, इसलिए जो जहाँ से परदेसी आदमी यहाँ आता है फिर यहाँ से भी, इसलिए आप यहाँ। तो आपका ठेकेदार गांव में आपको बताता है वहाँ काम है, या आप बस आ जाते हो कि अब मिल जाएगा ठेकेदार? नहीं, किसी की अगर जान परिचय होती है तो वहीं से बात कर लेता है आदमी। अच्छा, फ़ोन पे बात कर लेते हैं, हम लोग आ रहे हैं, इतने आदमी हैं, क्या रेट देगा क्या नहीं देगा, तो सारी बात वहीं से पूछ लेता है। यहाँ से आया, उसने बता दिया कि हम यहाँ पे हैं, उठा के ले जाओ, तो यहाँ से ले जाता है। अगर किसी के पास जानकारी नहीं है तो यहाँ आके ठेकेदार वगैरह आते हैं, उनके साथ चले जाते हैं, बात अपनी करते हैं। These laborers reach here in the early morning and wait for their contractor to earn some work. And from here, contractor take them away to the work site. मैं बिहार का मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। दिल्ली कब आए आप? दिल्ली में 11 साल से हूँ। कितने? 11 साल से। तो आप कितने बजे आ जाते हैं यहाँ सुबह? सुबह 9 बजे यहाँ हमारा काम शुरू हो जाता है। अच्छा, और दिल्ली में रहते कहाँ हैं आप? हम महरौली कुतुब बाबा दरगाह। वहाँ आपकी फैमिली भी रहती है, परिवार? नो, फैमिली नहीं है हमारा। अच्छा। फैमिली घर पे। घर पे है? बहुत मेहनत करते हैं, पेट नहीं भरता, मेहनत करने से भी। जैसे हम काम किए हैं, पैसे नहीं मिल रहा है तो उसके लिए कोई उपाय मिल सकते हैं। पुलिस वाले को बोलने, पुलिस वाले आते नहीं है, उसके पैसे खा लेते हैं। अभी जो पुलिस वाले भी मारपीट करते हैं यहाँ पे? हाँ, पुलिस वाले मारपीट करते हैं। और आपसे मतलब आप पैसा भी मांगते हैं यहाँ का? पैसे भी मांगते हैं, 3,000-4,000 रुपये लाओ तो सुनेंगे नहीं। अच्छा, आप लोग जहाँ रहते हैं आपके घर में सोने के लिए मतलब घर वर सब सही है या फिर? नहीं, घर सही नहीं है, ऐसे टीने का घर बना रखा हूँ, झुग्गी डाल रखा है। और किराया? किराया नहीं, अभी वैसे रह रहा हूँ खाली। अच्छा, कहीं भी रह लेते हैं ऐसे? हाँ जी। अच्छा, और आपको क्या समस्या है? समस्या तो बस यही है, बस और क्या। कितना टाइम हुआ आपको दिल्ली आए हुए? हो गया 2-3 साल हो गया। 2-3 साल हो गया। तो आपको मतलब ये नहीं लगता कि मतलब कुछ और जगह अच्छी फैक्ट्री में नौकरी मिल जाए? मिल ही नहीं रहा है, फैक्ट्री में मिलता है, बेईमानी होता है, सारे जगह ठेकेदार होता है। हाँ, अच्छा। मालिक तरफ से कहीं काम नहीं मिल रहा है, सब जगह ठेकेदार खाने वाला है। तो ठेकेदार से आपको बहुत प्रॉब्लम्स है, पैसा टाइम पर नहीं मिलता। Despite India's rapid economic growth in recent years, poverty and begging in India are still big problems. Begging in India is a compulsion, a profession, a privilege and a recreation. Our heads hang down in shame when we read description of this institution given by foreigners in a hateful manner. Unemployment, illiteracy, ignorance and ever increasing population are the causes of begging. Generally, women don't get the proper work opportunity, and under these circumstances, ultimately they have to beg to earn a one-time meal. कितने सालों से है? 6 बरस से। तो आप किसके साथ आई थी दिल्ली? किसके साथ आए थे दिल्ली? 5-10 जन आई था। 10 लोग आए थे। अच्छा, क्यों आए थे? याद घूम रही वो देखिए दुकान। अच्छा, मतलब भीख मांगने के लिए? वहाँ सारे जाना तो घूम रही यार, क्या हम बस स्टैंड रखी। तो आपके यहाँ के लोग कहाँ हैं? सारे लोग वहीं हैं। और आपका बेटा कहाँ है आपका? 1 बेटा 2 बेटी। अच्छा, कहाँ है वो? काम कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? आगे से रिक्शा चला रहे हैं? मैं 14 साल से चला रहा हूँ। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं बिहार बेगूसराय बरौनी के रहने वाला हूँ। अच्छा, तो आपका परिवार यहीं रहता है? नहीं, मैं परिवार यहाँ नहीं रखता हूँ, 2 लड़का है और एक अपने। अच्छा, बेटे आपके यहीं रहते हैं? हाँ। वो भी रिक्शा चलाते हैं? नहीं, वो ऑटो चलाता है। अच्छा, तो फिर आप मतलब 14 साल पहले आए थे, रिक्शा चलाने ही आए थे दिल्ली?
पहले किसी और काम से आए थे? नहीं, पहले तो हम आए थे 20 साल पहले आए थे। तो मैं मोटर मैकेनिक हूँ। अच्छा तो तनख्वाह कम है और नौकरी करने से गुलामी है। अच्छा। पूरे महीने खट के और अपनी पैसे मांगना पड़ता है हाथ पसार के। अच्छा। तो बाबूजी पैसे दो। तो मतलब आप अपना काम करना चाहते थे? हाँ। तो मैंने अपना काम अच्छा बुझाया, मुझे रिक्शा। तो आपने अपना काम अपने गांव में क्यों नहीं शुरू किया? यहाँ गांव में शुरू किया ना। गांव में उतनी योजना नहीं है, उतनी की ये नहीं है। योजना कैसी? योजना की फैक्ट्री ये चीज, मतलब हर रिक्शा चीज चलाने के लिए कैसे? रिक्शे चलाने के लिए अगर कारखाना रहेगा तो आदमी ड्यूटी करने जाएंगे तो रिक्शे पे बैठेंगे। कहीं जाएंगे तो रिक्शे पे बैठ के जाएंगे। अच्छा, ये लोग नहीं है। हाँ, लोग नहीं है। यहाँ पे लोग ज्यादा वहाँ हैं। खेत थोड़े जोतने जाएंगे रिक्शे से। तो दिन का कितना मिल जाता है आपको? बात ऐसा है ना, गांव की पैसे आपकी कमाने में अगर शाम में लाओ तो सुबह खत्म हो जाते हैं। अच्छा। उसी हिसाब से कमाई होता है, तो बचत की खाता में नहीं आता है। यहाँ कैसे जमा करते हैं आप? यहाँ तो और महंगाई है, घर का। हाँ, तो मैकेनिक में मैं पहले बोल दिया ना, अपनी तो करने के लिए पूंजी नहीं है। अच्छा। नौकरी करेंगे तो आपकी गुलामी करेंगे। पूरे महीने में अपनी खून बहा के आपको दे देंगे। आप अपनी तनख्वाह के लिए आपके पास हाथ पसारेंगे। कोई टाइम से नहीं मिलेगी। टाइम से देंगे नहीं। घर में बीवी बीमार है, बच्चे बीमार है, आज नहीं 10 को नहीं मिलेगा, 15 तारीख के अरे पैसे नहीं आया पार्टी के यहाँ से, फिर 20 तारीख को ले लेना। और मैंने पूरी मेहनत करके 1 महीने उसको दे दिया। तो रिक्शे आप सबके अपने अपने हैं या किराए गुलामी हिंदुस्तान में गुलामी खत्म नहीं हुआ है। आप शायद सोचते होंगे कि हिंदुस्तान की गुलामी खत्म हो गया है, तो ये आपकी सोच भी सबकी गलत होगी। हिंदुस्तान की गुलामी खत्म नहीं हुआ। अंग्रेज चले गए मगर पूंजीपति की गुलामी है। The most important phase in human life is the childhood. It is that stage of life when the human foundations are laid for a successful adult life. It is the phase when we are carefree, fun-loving, learning and playing. But the process of migration worsens the condition of children. They are forced to work under hazardous working conditions. The story of a small child more clear this fact. नाम क्या है भैया? अच्छा, कितने सालों से काम कर रहे हो? हाँ, 10 साल से। 10 साल से काम करा। तो क्या उम्र होगी? कब से काम करना? 15 साल के? मतलब 5 साल से करना शुरू कर दिया था काम? 5 साल की उम्र से काम करना शुरू कर दिया था? हो कहाँ से? तो काम करते हुए कभी चोट नहीं लगी, कोई दिक्कत नहीं आई? तो फिर देखो कहाँ है उंगली? अच्छा, तो फिर से काम करना शुरू कर दिया था? हाँ। कोई दवाई ववाई नहीं ली उसके लिए? ले ली थी दवाई? क्या लगाया था? डॉक्टर के गए थे? टेप लगा लिया था बस, और फिर काम करना शुरू कर दिया? कभी गाड़ी में काम कर लेते हैं, कभी ईटा गारा कर लेते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या दिक्कत है? अब बस दिक्कत वही, बस ऊपर चले जाए, दिक्कत दूर हो जाए बस। आपको मतलब ऐसा नहीं है कि किसी तरह इनकम बढ़ जाती या ये काम में कोई और दूसरा अच्छा? अब कोई हिम्मत ही नहीं, उतनी ताकत नहीं सर, उतनी ताकत नहीं। बैठे बैठे पहले पल्लेदारी किया, बहुत मेहनत मैंने किया हूँ। जब एक्सीडेंट हो गया था सीना पे 2 महीने तक पल्लस्तर चढ़ा था, तब इस लाइन में आ गए हूँ। अब 100 मिल जाए, 50 मिल जाए, 200 रुपये मिल जाए, वो भी ना मिले, छुट्टे मजदूरी क्या भरोसा है। तो आप जैसे जब दिल्ली आए थे, दिल्ली जब आप आए थे तो आपने यही काम शुरू किया था? नहीं सर, पहले पल्लादारी मैंने किया था। अच्छा। रिक्शा चलिया चलाया था, बहुत मेहनत किया था। मतलब पर डे के हिसाब से आपको मिलता है?
सर रोज के हिसाब से पर डे क्या 1500 रुपये तनख्वाह मिलती है और अभी तक सैलरी बटी भी नहीं है किसी की भी। अच्छा, आपको सैलरी नहीं मिली? अभी कितना किसी की टाइम नहीं से बटी। मतलब अभी पिछले महीने की अभी मिली नहीं। 18 तारीख हो गई। पिछले महीने की अभी तक मिली नहीं। पिछले महीने से नहीं मिली? हाँ, पिछले महीने की अभी तक मिली ही नहीं। अच्छा, तो आपको 1500 मिलते हैं? 1500 मिलते सर। कैसे करते, समस्याएं होती होंगी ना बहुत। अब सर जी क्या करा जाए, बाल बच्चे छोटा, पूरा तो हो पाता नहीं 1500 रुपये में, लेकिन क्या करा फिर भी करना पड़ता है। तो कितने घंटे काम करते हैं आप सुबह? सर जी 7 बजे से आके 5 बजे तक हमें रहना होता है। अच्छा, अब चेकिंग इतना है कि हमें पल्ली लगा के और वो मतलब चूना वूना लगा के सेट कर देना पड़ता है। Housing is one of the basic requirements for human survival. It has a direct effect on health, education and efficiency of the workers and their families. Further, a vast majority of poor either do not have a house or living in an unserviceable kacha house in slum. Under dismally poor living conditions which lack basic amenities like sanitation, water supply, regular disposal of solid waste and garbage, which are the source of pollution to resource in the environment. 2/3 of the slums are composed of kacha structures, which 2% of slums are having open kacha drainage system. 82% of the slums are experiencing water logging during monsoon season, which gave birth to various dangerous diseases, according to the NSSO 58 round. These slums are generally overcrowded in a sense. In a small room of 5 to 6 members, they are used to live together without having proper ventilation facilities or electric supply. Women in India are engaged in different informal activities such as agricultural work, construction work, self-employed work, home-based work, and in domestic work. The overwhelming majority of women are in domestic work. They sweep, they wash, they cook, they take care of children, elders, and even pets also. But these activities are generally considered as women's work, which are unseen, invisible, and undervalued in the society. Domestic work is emerging as an important employment opportunity for women. Last 2-3 decades, we have seen an increased number of women entering domestic work. If you look at the recent data, 2009-10 data, domestic work account for about 7.4% of total women's employment, and in urban areas, it accounts for 23% of service sector jobs. There are many reasons as to why women prefer domestic work over other informal sector jobs. The one reason I think which is very important is the regularity aspect of domestic work, and also the assumption that domestic work is an extension of household work, which is largely seen as women's work. Another important factor which I think is as to why women prefer domestic work is the flexibility that it gives to women in terms of working hours, in terms of number of houses, in terms of tasks and things like that, which makes this an attractive option for many women, as it helps them to combine both household work, their own domestic work, and paid employment. आप यहाँ पे दिल्ली में कितने सालों से हैं? मैं 15 साल से। 15 साल हो गए हैं। हाँ। आप यहाँ पे जब आई थी तो बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए आई थी या काम ढूंढने के लिए आई थी दिल्ली? नहीं, ऐसे पति के साथ आई थी। तो आप ये काम कितने सालों से कर रहे हैं? मैं 3 साल से काम कर रही हूँ। तो आपके जो पति हैं आपको काम करने उनको कोई दिक्कत तो नहीं है? आप ये इतने यहाँ पे काम करती हैं। दिक्कत तो होता है, उसने कहता है कभी ये काम सब करने से उनको दिक्कत आते हैं, पर मैं मजबूरी में काम कर रही हूँ। किराया देना होता है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं, इसके द्वारे में काम कर रही हूँ, मजबूरी में कर रही हूँ। मेरे जाति के कोई काम नहीं करते हैं। ये काम आपकी जाति में नहीं करते हैं? नहीं, ये काम सब मेरे जाति में नहीं करते। और मजबूरी में मैं काम करती हूँ। तो ये इतनी महंगाई में
जो है? महंगाई है और 4 बच्चे हैं, सबके खाना पीना लते कपड़े जुमाने पड़ता है। पति के काम से अभी पूरा नहीं हो रहा, इसीलिए मैं काम कर रही हूँ। तो जैसे आपका राशन कार्ड या वोटर आईडी कार्ड है क्या? राशन कार्ड तो है, लेकिन कुछ नहीं, 15 किलो गेहूँ मिलता, 5 किलो चावल मिलता। अच्छा। उससे 6 आदमी में क्या होगा? तो सारे चीज खरीदने ही पड़ता है। और बाहर से मोल खरीदने में बहुत महंगा लगता होगा। बाहर से खरीदता हूँ, मोल महंगा पड़ता है सब चीज। आप यहाँ सुबह कितने बजे आ जाती हैं काम करने? मैं 8:30 बजे 9 बजे काम पर निकलती हूँ। अच्छा। कभी 4 बजे जाती, कभी 5 बजे घर जाती काम करते करते। अच्छा, मतलब कोई घंटे आपके वो नहीं है? नहीं, वो कि इतने नहीं है, घंटे आपको काम करना है, इतने घंटे करना है, ऐसा कोई आपका वो नहीं है? वो नहीं है, मतलब जैसे जिस दिन जितना काम होता है उतना काम करने पड़ता है। अच्छा। और तनख्वाह वही मिलते हैं। अच्छा, तो मतलब तनख्वाह आपको बहुत कम मिलती होगी और मतलब बहुत देर देर तक काम करना पड़ता होगा। तो आपको मतलब जो आपके मालिक लोग हैं, मालिक वगैरह, छुट्टियां देते हैं समय समय पर? नहीं, महीना में 2-3 छुट्टी अपना मन से लेती हूँ और कह के छुट्टी नहीं देते। और कभी अगर बीमार हो जाएं आप या फिर कभी बच्चे बीमार हैं? वही लगा के 2-3 छुट्टी करती है, ऐसे छुट्टी नहीं देते। छुट्टी नहीं देते हैं? अच्छा। ये जैसे आजकल गैस इतनी महंगी हो रही है, जो खाना पकाने वाली गैस है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, तो आपका तो जो तनख्वाह है वो तो मतलब फिक्स है ना, बढ़ती भी नहीं है। तो ऐसे में आपको जब घर चलाने में बहुत दिक्कत आती होंगी। दिक्कत तो है। तो फिर आप उस ऐसे वक्त में आप मतलब नए और घर जोड़ते होंगे, मतलब नए घर बढ़ाते होंगे अपने काम के, काम ढूंढने के लिए। मैं और काम तकती हूँ, कर लेती हूँ, इसीलिए जो कैसे भी घर चले, कोई चीज़ की दिक्कत नहीं हो, बच्चा सब खुश रहे, इसीलिए मैं काम करती हूँ। बच्चे आपके छोटे छोटे हैं अभी? नहीं, बच्चे सब बड़े हो गया। और उनकी पढ़ाई में खर्चा बहुत आता होगा। पढ़ाई में 3-3 हज़ार रुपया, हजार सबको ट्यूशन फीस ही है। Number of domestic workers are migrants, and the class, caste, gender intersections, and the lack of regulatory framework, in a sense, lead to the undervaluation of domestic work. काम करना नहीं है या मतलब आपको नहीं करना, आपको घर में रहना, या फिर आपको लगता है मिल जाएगा तो कर लेंगे, कोई अच्छा काम मिल जाएगा तो? नहीं, मेरा कोई करने नहीं देता। करने नहीं देते आपको? आदमी चाहे मजदूरी कराए, कुछ कराए, औरतन के लिए नहीं करने देते। अच्छा, ऐसे सोच रखते हैं वो कि आप मेरे इधर कोई काम नहीं करते हैं। अपने घर का काम करो, रोटी पानी और कुछ काम। If you look at this Indian labor rights related legislations and acts since even 1948, you can begin from the Factories Act, and if you take it down to certain legislations like what you have in unorganized sector workers, which is called the, say for example, the construction workers legislation, which may not have been implemented at the state level, but the central law, which is very, very strong. What you can probably find is a continuum in the at the governmental thinking. What you call as governmentality is very well connected to the rights discourse what is taking place at the international level. You can, something like the 1990s, you see especially the migrant workers and families convention, the UN convention, ILO convention on that, which unfortunately is not really a concern by the Indian state, but there are parallel legislation which will always look at minimum wages, fair treatment, and freedom of movement and things like that. But the issue is all around, especially for female workforce. The concerns have not actually been realized
at the implementation level. You have so many systems which talk about tribunals. You have various other, labor dispute settlement systems and all. If you take an assessment of the performance and their activity in a sense of labor rights, how probably it would have realized their rights, you will find a very small percentage of their claims would have been realized or things like that. So this is in a broad sense the dignity, the rights, and this whole question of Indian labor is actually about. Okay, so if you look at the other part, and if you look at the employment guarantees, another kind of labor incorporation strategy. But what happens probably is the state has a kind of labor, and the output probably is not very socially productive. So the large-scale program, which actually has been named after Mahatma Gandhi, is probably not agreeing to his concept of Swaraj even to have or a village democracy or village power, to have more constructive resource building at the level of gram panchayats or things like that. So you have this yojanas, and you have several yojanas, and the labor component is included. But then one has to really you look at the possibilities of labor and the labor needs, and how labor activity is benefiting the larger community itself, which is of course a question of dignity, that a product of their labor is bringing more development and things like that. So it's a matter of dignity for them. Despite having all these problems, the migrants do not have any escape from these hardships of life. They have to migrate, they have to work, and they have to suffer. There is no other way to have bread, clothes, and shelter. And this is so, migration is still continuing. मेहनत कश हूँ मैं, श्रम ईमान मेरा धर्म है। इस सारे जीवन की पूंजी मेरा दर्द मेरा कर्म है। हर हाल में खुशहाल हूँ मैं, अपने देश का चमकता भाल हूँ मैं। थोड़े से स्वार्थ की खातिर नहीं मैं वतन बेचता हूँ। ना कोई घरवार मेरा, ना कोई ठोर ठिकाना है। धरती को बना बिछौना, आकाश ओढ़कर सोता हूँ। मैं मजदूर हूँ, मैं श्रम बेचता हूँ।